کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے ساتھ والدین کے حقوق کا بیان کیا ہے، لیکن والدین کے حقوق سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ در حقیقت جو اللہ کو مانے گا، جو اللہ کا حق ادا کرے گا، وہی باقی تمام حقوق کو ادا کر سکتا ہے، اور جو اللہ ہی کو نہ مانے، اللہ کی توحید کو ہی نہ مانے، تو اس کے لیے پھر نہ ماں باپ، نہ کنبہ قبیلہ، نہ بیوی بچے، کسی کا حق اس کی نظر میں پھر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لہذا توحید بنیادی نقطہ ہے۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، ان سب کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت کا جو نقطہ آغاز تھا وہ توحید تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں، ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، لیکن میرے حق پہ بھی ڈاکہ مت ڈالنا۔ میرا جو حق ہے یعنی توحید، وہ تمام کے تمام حقوق میں سب سے اوپر ہے۔ جس بندے نے توحید کے اندر رب کی ملاوٹ کی، وہ کتنا بڑا ماں باپ کا خدمت گزار ہو، کتنا بڑا حاجی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، پابند ہو، اس کی تمام عبادات دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ صحابہ اکرام اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ ماں باپ کا ادب احترام بہت زیادہ ہے، لیکن ماں باپ، کنبہ قبیلہ، گھر بار، سب سے پہلے رب کی توحید ہے۔ دیکھیے صحابی ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کی وجہ سے ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئیں، اور والدہ نے کہا سعد اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امی جان یہ تو ایک ہے، تیری ایک جان ہے، اگر تجھ جیسی کئی مائیں بھی ہوں تو محمد پر قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دین میں لے آیا ہوں، جو اسلام میں لے آیا ہوں، جو ایمان میں لے آیا ہوں، جو توحید میں نے اللہ کے نبی سے سیکھ لی ہے، امی جان آپ ایک دن کھانا نہ کھائیں یا کئی دن کھانا نہ کھائیں، مجھے یہ منظور ہوگا، لیکن توحید کا رشتہ جو میرا اللہ کے نبی سے جڑ چکا ہے وہ رشتہ اب ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی کنبے قبیلے، ماں باپ، گھر بار، کاروبار، سب کو چھوڑ دینے کا نام دین اور توحید ہے۔ رب نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، یعنی کچھ رشتہ داریاں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے بندہ دین اسلام سے، توحید سے پیچھے ہٹتا ہے۔ ان تمام کی تمام چیزوں کو رب رحمان نے قرآن مجید میں کاؤنٹ کروا دیا۔ قل میرے حبیب کہہ دیجئے، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم کنبہ قبیلہ خاندان، و اموال اقترفتموها، وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادها، وہ تمہارے بزنس، وہ کاروبار، وہ تجارتیں کہ جن کے نقصان سے تمہیں ڈر لگتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، بہترین آرام دہ گھر، گرم کمبل، گرم بستر، تمام کی تمام چیزیں اللہ نے گنوا دی، اور اس کے بعد کا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ یہ تمام کی تمام رشتہ داریاں، تیرا باپ، تیری ماں، کنبہ قبیلہ، گھر بار، تیرے بیوی بچے، مال و متاع، کہ یہ تمام چیزیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں۔ فتربصوا، اگر ہیں تو پھر انتظار کرو۔ اگر یہ تمام رشتہ داریاں، تیرے بیوی بچے، ماں باپ، کنبہ قبیلہ، گھر بار، بزنس، بہترین آرام دہ گھر، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں تجھے رب سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، پھر اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امی جان
जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ लिया अब उस नबी को नहीं छोड़ सकता। 1000 माएँ भी उस एक नबी पर कुर्बान। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अरब का शहजादा था। अल्लाह अकबर। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि इतनी आलीशान और शाहाना जिंदगी मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुजारी है। जिस्म पर जो कपड़ा ज़ेबतन करते मालूम है आपको, उस वक्त के 200 दरहम का आता था, यानी आज के लाखों रुपए लगा लीजिए। 200 दरहम का उस वक्त ज़ेबतन किया हुआ कपड़ा मुसअब बिन उमैर के तन पर मौजूद हुआ करता था। जो खुशबू मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगाते, पूरे अरब में ऐसी खुशबू किसी ने सूंघी भी नहीं होती। इतनी आलीशान जिंदगी गुजार रहे थे। इस्लाम लाए, रब की तौहीद को कबूल किया। तौहीद पर आ जाने के बाद माँ नाराज, चचा नाराज, खानदान नाराज, सब ने बाइकाट कर दिया। अब एक फैसला होने जा रहा है। मुसअब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या तो खानदान को चूज करना है या तो इस्लाम को। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये शहजादगी, ये बादशाही, सब कुछ कुर्बान, मेरे माँ बाप, मेरा खानदान, मेरा चचा, ये सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैसला हो गया। फैसला हो जाने के बाद चचा आया। चचा ने आके कहा, मुसअब, ये जो फैसला आपने किया है कि आप खानदान को छोड़ सकते हो, माँ को छोड़ सकते हो, बरादरी को छोड़ सकते हो, लेकिन अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ सकते, इस पर कायम हो? मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं इस पर कायम हूं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन अल्लाह के नबी का साथ नहीं छोड़ूंगा। जो दावत तौहीद मैंने अल्लाह के नबी से सीखी है, उस दावत तौहीद का मकसद ही यही है कि सब कुछ कुर्बान कर दिया जाएगा लेकिन दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा जाएगा। चचा ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तेरा ये फैसला है तो हमारा फैसला भी सुनो। हमारा फैसला यह है कि हम तुझे अपने खानदान में बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस घर से आप रुखसत हो जाइए। जब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो घर छोड़ के जाने लगे, चचा ने कहा, बात सुनो, जो तेरे जिस्म के ऊपर कपड़ा मौजूद है वो भी तेरा नहीं, तेरे बाप की कमाई का है। तेरा इन कपड़ों पर भी कोई हक नहीं, फिर ये कपड़े उतार के तू यहां से निकल। अल्लाह की कसम, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंग बदन अपने घर से निकल गए, लेकिन मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है तौहीद कि तौहीद पर आ जाने के बाद माँ बाप को भी छोड़ दिया जाएगा, घर बार को भी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन शिर्क की दलदल में वापस नहीं जाया जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर आप पढ़ें, ये तो तमाम के तमाम अंबिया ने तौहीद के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप उसवा का मुताला करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब रहमान ने इतना आजमाया, यार अपनी औलाद के गले पर, गर्दन पर छुरी चला देना कोई मामूली बात थी? ये वाकया सुना देना आपका सुन लेना आसान है, लेकिन सोच के देखो, वो इब्राहीम के यहां पर दिल था, कोई पत्थर नहीं था। जिस तरह मेरे आपके यहां पर गोश्त पोश्त का बना हुआ एक दिल है, जिस दिल के अंदर अपनी औलाद के लिए मोहब्बत बसी है, इब्राहीम के दिल में भी थी। बल्कि इब्राहीम ने तो इस्माइल को दुआओं में मांगा था, लेकिन रब का हुक्म आ गया, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर इस्माइल को भी कुर्बान कर दिया। तौहीद के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुर्बानी रब ने मांगी दे दी। कौम कबीले ने बाइकाट किया, बर्दाश्त किया, बल्कि अपनी कौम को सुथरी दावत दी, जिसकी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को रब रहमान ने कुरान के अंदर बयान किया। सूरत मुम्तहिना में ना सिर्फ बयान किया बल्कि कहा कि इब्राहीम तुम्हारे लिए मॉडल है। सूरतुल अहज़ाब में कहा ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि लोगों तुम्हारे लिए मोहम्मद की ज़ात मॉडल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह सूरतुल मुम्तहिना के अंदर रब ने फरमाया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू। लोगों, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार, उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए मॉडल, एग्जाम्पल, नमूना है। क्या किया था इब्राहीम ने? इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, इब्राहीम ने अपनी कौम से खिताब किया, इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। साफ ऐलान, कोई लगी लिपटी नहीं। ऐ मेरी कौम के लोगों, सुन लो, जिसके अंदर इब्राहीम का मुशरिक बाप भी मौजूद, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानदान भी मौजूद,
तमाम दोस्त रिश्तेदार कुंबा कबीला जो लोग एक अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया, लोगों हमारे और तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी कायम रहेगी यहां तक कि तुम ईमान ले आओ। ईमान ले आओगे हमारे भाई बन जाओगे, तौहीद पर आ जाओगे तो दोस्तियां हो जाएंगी। अगर तौहीद पर नहीं आओगे तमाम रिश्तेदारी खत्म, तमाम कुंबे कबीले से दोस्तियां खत्म। ये इब्राहिम का अटल फैसला है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद कौन थे जानते हैं ना आप? जो अपने हाथों से बुतों को बनाया करते, उन बुतों को बाजार में फरोख्त किया करते और उन्हीं बुतों से मन्नतें, मुरादें और हाजतें मांगा करते। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाबा जान को कहा बड़े खूबसूरत अंदाज में। हमारे यहाँ असल में बात ये होती है कि हमारे अखलाक बहुत बुरे हैं। वो अखलाक दोस्तों के साथ हों, मस्जिद वालों के साथ हों, बीवी बच्चों के साथ हों, घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ, हमारे अखलाक बदतरीन अखलाक हैं। अपने अखलाक को बेहतर कीजिए। तौहीद का माना ये नहीं, या दीन इस्लाम का माना ये नहीं कि तू जनाब मुमताज हो गया बाकी सारे हकीर हो गए। अंदाज़े गुफ्तगू, लोगों को दावत देने का अंदाज। कई हमारे दोस्त ऐसे साथी ऐसे कि जनाब तौहीद के अकीदे पर आ जाने के बाद माँ बाप से बदतमीजी शुरू, घर में लड़ाइयाँ शुरू, झगड़े शुरू। वो आला अखलाक होने चाहिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आला अखलाक से लोगों को करीब किया। अब बंदा मवाहिद हो गया तो वालिदैन उसी शर की दलदल में मौजूद है तो माँ बाप के साथ बदतमीजी नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुशरिक बाप को खिताब करते हुए कहा, मेरे प्यारे बाबा जान, अंदाज़े तखातुब देखिए, ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, जिन बुतों की आप अल्लाह को छोड़ के परस्तिश करते हैं ये आपको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन अंदाज इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेहतरीन रखा, लेकिन तौहीद के अकीदे पर कायम रहे। शिर्क की दलदल में माँ बाप की वजह से, बाप की दावत की वजह से नहीं गए। लेकिन जो अंदाज था अपने माँ बाप को मुखातिब करने का, वो इब्राहिम ने बहुत अच्छा रखा। क्योंकि माँ बाप अगर मुशरिक भी हों तो आपके ज़िम्मे जो लायबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियां हैं वो कायम रहेंगी। माँ बाप के साथ हुस्न अखलाक का मामला, माँ बाप के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला, वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। चे जाए कि उनके कहने पर आप शिर्क की दलदल में नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी खिदमत हो, उनके मामलात हो, उसमें आपने पूरा पूरा किरदार अदा करना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां अपने हक का तस्करा किया, साथ ही माँ बाप के हक का भी तस्करा कर दिया। फरमाया, लोगों अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक रखना।